Dear friends, this will be the last lecture of solutions, that is the ideal and non-ideal solutions. आइडियल सोल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, उस चीज पे हम आज बात करने जा रहे हैं. सो लेट्स टॉक ऑफ फर्स्ट आइडियल सोल्यूशन. आइडियल सोल्यूशन वो वाले सोल्यूशंस होते हैं जो ओबे करते हैं, विच ओबेज Raoult's law. Those solutions which obeys Raoult's law at all concentrations and temperature, such a solution we call as ideal solution. Raoult's law obey करने का मतलब ये है कि all equations which wire in Raoult's law are equally applicable to ideal solutions. For example, PA will be equal to PA naught into XA, and PB partial vapor pressure of B component will be equal to pressure of that component into mole fraction of that component, and the total pressure PT will be equal to PA plus PB. कहने का मतलब यह है कि all those equations which wire in Raoult's law are applicable to ideal solutions also, क्योंकि यही जो solutions हैं वो ओबे करते हैं Raoult's law. दूसरी बात, ये वाले जो solutions होते हैं they must behave ideally, because Raoult's law में condition एक important है, that is the solution should be very dilute, means that should behave ideally. So it should behave ideally. ये कब behave ideally करेगा? जब meaning interaction, A-B interaction is almost same as that of AA and BB interaction. So AB interaction is almost same as that of AA and BB interaction. So AB interaction वो लगभग बराबर होनी चाहिए than AA and BB interaction. तब आपका जो solution है वो behave करेगा ideally. जब वो solution behave करेगा ideally, इसका मतलब ये हुआ वो Raoult's law जो है वो obey करेगा. Hence such a solution we call as ideal solution. अब ये कब interactions कब same होंगी? One thing I want to tell you is हम लेते हैं A as solvent और B जो है वो हम लेते हैं normally solute. ये हमने इससे पहले भी इसकी बात कर दी थी. So A we take as solvent, B we take as solute. तो solute और solvent के दरमियान जो interaction है वो almost same होनी चाहिए. Solute interaction and solvent interaction C. This solution is basically called as ideal solution. In ideal solution में क्या खासियत है? वो ये है कि volume mixing will be 0. So for such solutions, delta V mixing will be 0. What does that mean? आपके पास एक container है, उसमें suppose आपने solvent डाल दिया है, suppose water. We have one more container that contain your solute. ठीक, suppose it's 10 ml. So it's again 10 ml. You add these two, you are getting a final solution. This is the final solution in which we contain water as well as solute. It becomes a solution. इसका कितना volume? इसका volume होगा 20 ml. मतलब change in volume of mixing will be equal to final volume minus initial volume. So final volume is 20 minus initial volume is basically 10 and 10, that's also 20, that will be 0. So volume mixing is 0 for ideal solutions. Next point is, अगर आप देखेंगे delta H mixing for such solutions is again 0.
व्हाट डज दैट मीन डेल्टा एच मिक्सिंग? एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। सिंस आपके पास है ये सॉल्वेंट, इसमें ए इंटरेक्शन है, ठीक। अब आपके पास सोल्यूट है, उसमें बी इंटरेक्शन है। जब आप इनको मिलाते हैं तो एक सोल्यूशन बन जाता है जिसका इंटरेक्शन डेवलप होता है ए बी इंटरेक्शन। सो आई टोल्ड यू राइट नाउ, इन आइडियल सोल्यूशंस में इंटरेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। जब इंटरेक्शन सेम है तो इसका मतलब ये हुआ ना हीट आपको लगेगी ना हीट आपको निकलेगी, नीदर इट विल बी एक्सोथर्मिक नॉर विल इट बी एंडोथर्मिक। सो मतलब ये कि डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी जीरो। एक इंपॉर्टेंट बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, वो ये कि अगर आप लिखेंगे आप डेल्टा एस मिक्सिंग, एंट्रोपी मिक्सिंग, दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, एंड डेल्टा जी मिक्सिंग, फ्री एनर्जी मिक्सिंग, दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। बिकॉज चूंकि सोल्यूशन बनता है, जब सोल्यूशन बनता है, जब सोल्यूट सॉल्वेंट में डालने का, when you add solute into solvent you are making a solution। जब solution बनता है मतलब प्रोसेस हो रहा है। जब भी कोई प्रोसेस होगा आपका फ्री एनर्जी चेंज जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होगा, दैट्स ऑलवेज नेगेटिव। सो दिस विल बी ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, वेदर दैट्स आइडियल नॉन आइडियल। सिमिलरली डेल्टा एस मिक्सिंग जो है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाटर खाली थे, यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स खाली थे। जब आपने इनको मिक्स कर दिया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गई। कैसे? सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी आ गए, सोल्यूट पार्टिकल्स भी आ गई, दोनों पार्टिकल। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब इंक्रीज हो गए तो एंट्रोपी विल इंक्रीज श्योरली। सो दैट्स व्हाई डेल्टा एस मिक्सिंग इज ऑलवेज positive for all types of solutions. So this is for all solutions, always for all solutions. This is true for, these two conditions are true for all solutions, that is delta S mixing will be positive and delta G mixing will be negative. But in case of volume mixing, that is zero in case of ideal solution, and enthalpy of mixing is zero in case of ideal solutions, because there is no interaction at all. Why there is no interaction between the, because interactions are same। अगर interaction different होती तब या तो अगर stronger A B होता तब exothermic होता, अगर A B weaker होता तब एंडोथर्मिक होता प्रोसेस। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वहां पे इंटरेक्शन सब सेम है। मतलब ये कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज जीरो। सो वॉल्यूम मिक्सिंग भी जीरो है बिकॉज देयर इज नो इंटरेक्शन। जितना वॉल्यूम यहाँ पे था वहां पे था तो टोटल वॉल्यूम भी वही बना। अगर इंटरेक्शन ज्यादा होती, मतलब अगर इंटरेक्शन इन दरमियान ए, जब बी ऑफ ए में डालते तब ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होते तो वो कंट्रैक्ट करेगा लिक्विड को। जब वो कंट्रैक्ट करता है लिक्विड को तब 20 ml नहीं आता, इट वुड हैव बीन 19 ml फॉर इंस्टेंस। तो उस वक्त आपका डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो कुछ वैल्यू निकलेगा, दैट वोंट बी जीरो। सो वो वाले केसेस जो है आप डिस्कस करने जा रहे हैं इन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ ओबे करने का मतलब ये है कि ऑल इक्वेशंस आर वैलिड फॉर राउल्ट्स लॉ, आर इक्वली एप्लीकेबल टू आइडियल सॉल्यूशंस। एंड ये इक्वेशंस कब वैलिड होंगे, राउल्ट्स लॉ कब ओबे होगा, जब एक सॉल्यूशन जो है वो बिहेव करेगा आइडियली। आइडियली कब बिहेव करेगा, जब इंटरेक्शन जो है ए बी इंटरेक्शन इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ ए एंड बी बी इंटरेक्शन। इस तरीके से जो है आपका एक आइडियल सॉल्यूशन बनता है। इन आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम मिक्सिंग जीरो होता है और एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी जीरो होता है, बट एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग एंड एंथैल्पी ऑफ entropy of mixing is always positive for all types of solutions and free energy of mixing is always negative for all types of solutions। ये आप याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अगर आप ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इफ यू पुट अ ग्राफ, सो इट्स लाइक दिस। ये ग्राफ हमने ऑलरेडी पढ़ा है राउल्ट्स लॉ में। सपोज यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए कंपोनेंट का 1 है तो बी कंपोनेंट का 0 होगा। यहाँ पे ए कंपोनेंट का 0 है तो बी कंपोनेंट का 1 होगा। यहाँ पे सोल्यूट आप डालते हैं तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का इंक्रीज होता है, एक सॉल्वेंट का डिक्रीज होगा। तो सीधी सी बात है, आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। थर्ड इज पी टोटल विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अगर आप पहले वाली इक्वेशन को देखेंगे, व्हेन एक्स ए इज इक्वल टू 1, व्हेन एक्स ए इज इक्वल टू 1 तब पी ए विल बी इक्वल टू पी ए नॉट। सो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा, दैट्स पी ए नॉट। अब देखिए जब अब एक्स ए, यहाँ पे एक्स ए 0 है तो when xa decreases so pa decreases, so it decreases continuously till xa becomes 0 तो pa becomes 0, that's here। Similarly अगर आप देखेंगे यहाँ इस वाले ग्राफ में xb is 0, जब xb यहाँ पे 0 है तो p ये 0 होगा प्रेशर।
व्हेन एक्स बी इंक्रीजेस तो पी बी भी इंक्रीज होगा, एक्स बी यहाँ से 0 है, यहाँ से 1 है तो इंक्रीज होता है, तो ये भी इंक्रीज होगा टिल it attains a value when the xb is equal to 1, pb will equal to pb naught, तो this is equal to pb naught. तो ये जो है ये एक्सप्रेशन this will be for pb equal to pb naught into xb and this will be for pa equal to pa naught into xa. तो ये अगर आप इनको मिलाएंगे when you combine these two, this gives you p total, that's pa plus pb. So this is the graph of Raoult's law, or we can say ideal solutions. These are the straight curves, straight graphs. These are the straight graphs. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है जब हमने Raoult's law पढ़ा होगा, आप वो फिर से देख लीजिएगा. नेक्स्ट इज नॉन आइडियल सोल्यूशन. सो नॉन आइडियल सोल्यूशंस होते क्या हैं? नॉन आइडियल सोल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का पहला खासियत यह है कि दे डू नॉट ओबे Raoult's law, डू नॉट ओबे Raoult's law. ये Raoult's law को ओबे नहीं करती. अच्छा, इनका एग्जांपल क्या आएगा? मीनवाइल इनका एग्जांपल क्या आएगा? इनका एग्जांपल क्या आएगा? एग्जांपल ये आएगा दिस इन सॉल्यूशंस का, वो ये है कि साइज जो है, मतलब इंट्रैक्शंस तभी इक्वल होंगी जब और मॉलिक्यूलर साइज और शेप लगभग सेम होगा, मॉलिक्यूलर साइज और स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होगा. तो इनमें एग्जांपल्स मैं यहां पे लिखूंगा. एग्जांपल विल बी बेंजीन प्लस मिथाइल बेंजीन, टॉलुईन, इनका मिक्सचर ये आइडियल बनेगा. या फिर आपका क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन है, सो क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, दिस विल बी अनदर एग्जांपल. या फिर आपके पास एग्जांपल बनेगी हेक्सेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन नॉर्मल हेक्सेन, इनका मिक्सचर. या फिर क्लोरो इथेन ब्रोमो इथेन, C2H5Br प्लस C2H5Cl. तो ये जो मिक्सचर्स है ये आपको बनेंगे आइडियल सॉल्यूशन. दे विल बी आइडियल सॉल्यूशन. उनका स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और वी कैन से साइज ऑलमोस्ट सेम है. तो such compounds which are similar in molecular structure or size, they qualify to be ideal solutions. They qualify to be ideal solutions. Next हमारे पास है नॉन आइडियल. सो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं which do not obey Raoult's law. जब ओबे नहीं करेंगे मतलब ये कि इक्वेशंस भी वैलिड नहीं होंगी, मतलब PA will not be equal to PA not into XA, PB will not be equal to PB not into XB, and P total will not be equal to PA plus PB. So मतलब जब Raoult's law ओबे नहीं करेगा तो इक्वेशंस भी वैलिड नहीं होगी. अब मसला यह है कि नहीं ओबे करने का मतलब यह है कि इसमें अब दो कंडीशंस आते हैं. ये कब पॉसिबल है नहीं ओबे करेंगे? इट इज पॉसिबल, प्रोवाइड इट्स पॉसिबल इफ AB interaction is different from AA and BB interaction. मतलब जब इंटरेक्शन सेम थी तब आइडियल बनता, अब जब इंटरेक्शन डिफरेंट है तो इट विल बी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. उस वक्त ये ओबे नहीं करेगा Raoult's law, मतलब इक्वेशंस भी वैलिड नहीं होगी. अब नॉट इक्वल टू का माने यह है या तो ग्रेटर देन है या तो लेस देन है. उस तरीके से जो है आपके पास टू टाइप्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस डेवलप होते हैं. लेट मी टेल यू दैट. सो नॉट इक्वल टू जो है इसका मतलब इट कैन बी इधर ग्रेटर देन और इट कैन बी इधर लेस देन. ठीक, आपके पास अब दो सॉल्यूशंस आते हैं. अगर ग्रेटर देन होगा तो वी हैव वन टाइप ऑफ सॉल्यूशन. सो बेस्ड ऑन दिस, नॉट बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी, based on inequality, we have two types of solutions. We have two types of non-ideal solutions. That is, आपके पास है एक non-ideal solution showing positive deviation. दूसरा है non-ideal solution showing नेगेटिव डिविएशन. सो एक तो नेगेटिव डिविएशन वाला है, दूसरा पॉजिटिव डिविएशन वाला है. नेगेटिव डिविएशन वाला का मतलब क्या है?
मतलब ये है कि अगर आपके पास पॉजिटिव डिविएशन का माने क्या है, पॉजिटिव डिविएशन वाला, अगर ए बी इंटरेक्शन वीकर होगा देन ए बी बी, मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज वीकर देन सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट सोल्यूट, तब जो सिस्टम बनेगा वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा एंड इट शोज पॉजिटिव डिविएशन। कैसे? जब इंटरेक्शंस वीकर है, यहां पे क्या है, यहां पे अगर ए बी इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा, ए बी इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन ए और बी बी, तब जब सोल्यूशन बनेगा वो नॉन आइडियल होगा, शोइंग नेगेटिव डिविएशन। सो नेगेटिव डिविएशन वाला कब आएगा? जब सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे देन सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। अगर पॉजिटिव डिविएशन होगा मतलब ये कि ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शन। जब ए बी इंटरेक्शन वीकर है मतलब आपके पास था कंटेनर, इसमें सपोज आपके पास so you are having a container that contains solvent, so we have AA interaction here, you are having one more container that contains solute, that's BB interaction, तब आपने ये इसमें डाल दिया, तब सोल्यूशन बन गया। जब सोल्यूशन बना तो इसमें इंटरेक्शन डेवलप हो गई ए बी इंटरेक्शन। सिंस ए बी इंटरेक्शन इज वीकर, मतलब ये कि जब ए बी इंटरेक्शन वीकर है तो वेपर ज्यादा बनेंगे, बिकॉज जब भी इंटरेक्शन वीकर होते हैं तो इट विल एस्केप इनटू द वेपर स्टेट इजीली, तो वेपर जब ज्यादा बनेंगे तो प्रेशर विल बी ग्रेटर, मतलब ये कि पी ए जो है दैट विल बी ग्रेटर देन पी ए नॉट इनटू एक्स ए, पी बी जो है दैट विल बी ग्रेटर देन पी बी नॉट इनटू एक्स बी, एंड पी टोटल विल आल्सो बी ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो इनइक्वालिटी जो थी, इनइक्वालिटी का माने ये है या तो ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा। अब ग्रेटर देन कब होगा, लेस देन कब होगा, ये डिपेंड करेगा व्हाट इज द इंटरेक्शन बिटवीन ए बी एज कंपेयर टू ए बी बी। इफ ए बी इज वीकर देन ए बी बी, तब जब ए बी वीकर है मतलब ये ज्यादा एस्केप होंगे इनटू द वेपर स्टेट, वेपर्स विल बी मोर, जब वेपर ज्यादा आएंगे तो प्रेशर विल बी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, सो पी ए विल बी ग्रेटर देन पी ए नॉट इनटू एक्स ए, PB will be greater than PB not XP, and P total will be more than PA plus PB. So this is the non-ideal solution showing positive deviation. Next point, यहाँ से क्या होगा? अब यही अगर आप यहाँ करेंगे, since AB interaction is stronger, अब AB interaction strong है तो वेपर्स कम बनेंगे, जब वेपर्स कम बनेंगे प्रेशर भी कम होगा, मतलब इन केस ऑफ non-ideal showing negative deviation, PA is less than PA not into XA, PB is less than PB not into XB, and P total will be less than PA plus PB. Next, जब interactions weaker होते हैं, when the interactions are weaker, what does that mean? You are having stronger interactions and you are making a weaker interaction, तो आपको एनर्जी यूज होगी, इट विल बी एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैसे? क्योंकि आपको जो है एनर्जी लगती है स्ट्रॉन्ग को ब्रेक करने के लिए टू मेक ए वीकर वन, आपको वीकर बनता है, स्ट्रॉन्ग आपको भी ब्रेक करना है, सो यू रिक्वायर एनर्जी, द प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक, मतलब ये कि डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, दिस विल बी ग्रेटर देन जीरो। व्हाई? बिकॉज आप वीकर इंटरेक्शन डेवलप करते हैं फ्रॉम स्ट्रॉन्गर, मीन्स यू हैव टू ब्रेक द स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन टू मेक द वीकर, आपको एनर्जी यूज होगी, द प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक, उस वजह से जो है आपका डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होगा। इन दिस केस सिंस यू आर मेकिंग अ स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन आउट ऑफ वीकर, तो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन जब भी होगा तब एनर्जी रिलीज होगी, तो डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो लेस देन जीरो होगा इन केस ऑफ नॉन आइडियल शोइंग नेगेटिव डिविएशन। थर्ड पॉइंट इज, इसमें ये पॉइंट है नेक्स्ट, दैट इज डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा? व्हाट इज डेल्टा वी मिक्सिंग? दैट विल बी अगेन ग्रेटर देन जीरो। कैसे ग्रेटर देन जीरो है? बिकॉज आपका जो इसमें सपोज 10 ml है, इसमें भी 10 ml आपने लिया था, तो 10 ml आपने मिक्स कर दिए ए बी, तो ए बी बन गया, लेकिन ए और बी के दरमियान जो इंटरेक्शन है दैट इज वीकर। वीकर होने का मतलब ये दूर दूर रहेंगे, दे विल बी फार्दर अवे, सो जब दूर दूर रहेंगे तो वॉल्यूम विल नॉट बी 20, इट विल बी 21 ml, बिकॉज इट एक्सपेंड्स अ बिट बिकॉज ऑफ वीकर इंटरेक्शन। सो ए का कुछ इंटरेक्शन था, बी का कुछ इंटरेक्शन था, तो इनका हमने 10-10 ml ले लिया था, तो 10-10 और मिक्स करके 20 बनना चाहिए इफ द इंटरेक्शंस वर सेम, लेकिन इंटरेक्शन इस वक्त वीकर है तो थोड़ा ये दूर चला जाएगा, दे वोंट बी क्लोजर, दे विल बी फार्दर, तो उस वक्त ml 20 नहीं आएगा, 21 ml आएगा। तो अगर आप निकालेंगे डेल्टा वी,
सो डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. वी फाइनल कितना होगा 21 माइनस वी इनिशियल होगा 20, दैट इज 1 ml. तो इट विल बी greater than 0, that is 1 ml. So this is what is for non-ideal solution showing positive deviation. In case of this one negative deviation, what you have, you are making a stronger interaction out of weaker. जब weaker होगा 10 और 10 ml, ठीक, डेल्टा वी मिक्सिंग कितना होगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. मतलब वी फाइनल कितना बनेगा अब 19 बनेगा, क्योंकि इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है. जब इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है तो वॉल्यूम जो है वो कंट्रैक्ट होगा, तो इट विल नॉट बी 21, इट विल बी 19. तो 19 माइनस 20, बिकॉज ये 10 और 10 20 है. फाइनल वॉल्यूम कितना बनना चाहिए था 20, लेकिन इट्स 19 ओनली बिकॉज ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द लिक्विड. व्हाई इट कंट्रैक्ट्स? बिकॉज द इंट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ नेगेटिव डिविएशन. तो इट बी -1, मतलब लेस देन 0. तो डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन 0. I hope you understand this. So in case of non-ideal solution showing positive deviation, delta H mixing is positive, delta V mixing is positive. But in case of non-ideal showing negative deviation, delta H mixing is negative. It's an exothermic process, and delta V mixing is less than 0, मतलब negative. ये आपको ध्यान में रखना है. अगर आप ग्राफिकली इनको देखेंगे, if you look at the graphs, so graphs are like this. So this is suppose XA is equal to 1, XB is equal to 0, XA is equal to 0, XB is equal to 1. Similarly, XA is equal to 1, XB is equal to 0, XA is equal to 0, XB is equal to 1. तो ग्राफ्स क्या थे पहले? What were the graphs initially? They were like this: PB naught, PA naught. तो ये जो ग्राफ था, this was P total. Similarly here, these were out of Raoult's law. अगर आप Raoult's law देखेंगे to P total. अब देखिए, in case of non-ideal solution showing positive deviation, तो pressure is greater. आप देख सकते हैं यहाँ pressure was greater than expected, तो it will be curve like this. curve will be like this. इसका भी ज्यादा बढ़ेगा. तो मतलब ये वाली कर्व जो है इसके ऊपर कर्व जाएगी, ये वाली लाइन जो थी इसके ऊपर लाइन जाएगी, बिकॉज प्रेशर इज ग्रेटर. पी बी इज ग्रेटर देन पी ए नॉट इन टैक्सी. सिमिलरली ये जो पी टोटल है दैट इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे भी डिक्रीज हो जाएगा. ये वाली लाइन जो है इसकी नीचे आएगी, ये वाली लाइन जो इसकी नीचे आएगी कर्व. सो दिस इज व्हाट वी सेड, पी ए इज लेस देन पी ए नॉट इन एक्स ए, पी बी इज लेस देन पी बी नॉट इन एक्स पी, and P total is less than PA plus PB. This is what we show in graphs. I hope you understand this. Now what can be the examples? In दोनों के लिए B, delta S mixing will be always positive and delta G mixing will be always negative. These are the two conditions for all types of solutions I told you earlier. Now what can be the examples in this case? The examples will be, चूंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो इसमें जो है एक आपका आएगा सपोज इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, या फिर बेंजीन प्लस एसीटोन. मतलब पोलर नॉन पोलर आएगा, बिकॉज इंट्रैक्शन वीकर बनाना है तो पोलर नॉन पोलर है, ये पोलर है नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है ये पोलर है. तो इस तरीके से जो है आपका सपोज कार्बन डाइसल्फाइड है और एसीटोन है, पोलर नॉन पोलर इंट्रैक्शन है. तो ये वाले जो सॉल्यूशंस हैं दे विल बी नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डिविएशन. अगर आप इनका देखेंगे, इफ यू लुक एट दिस शोइंग नेगेटिव डिविएशन, सो इनमें एग्जांपल्स आएंगे पोलर पोलर इंटरेक्शन, मतलब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म. वी आर हैविंग क्लोरोफॉर्म एंड ether. Then you have we are having chloroform and nitric acid. मतलब आप याद क्या रखेंगे, याद ये रखेंगे आप, क्योंकि आपको इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर डेवलप करनी है तो पोलर पोलर होगा. अगर आपको वीकर इंट्रैक्शन डेवलप करनी है तो लेस पोलर और वी कैन से पोलर इंट्रैक्शन होगा, नॉन पोलर पोलर इंट्रैक्शन डेवलप होगा. तो उस वक्त आपका सोल्यूशन बनेगा नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डिविएशन. जब पोलर पोलर होगा तो स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन डेवलप होगी, मतलब ये कि आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन डेवलप हो जाएगा. So this is how you can make a non-ideal solution showing positive deviation and non-ideal showing negative deviation. Now there is one important point, that is, अगर आपके पास ये जो है यहाँ पे अगर देखेंगे आप, ये वाला जो प्रेशर है यहाँ पे जो प्रेशर है इस वाली कंपोजिशन पे,
इस वाले कंपोस्ट में जो प्रेशर है दैट्स मैक्सिमम। जब प्रेशर सबसे ज्यादा होगा ग्रेटर, तो बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे कम, लोवेस्ट। सो प्रेशर इज मैक्सिमम, बॉइलिंग पॉइंट इज लोवेस्ट बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्रेशर। यहां पे अगर देखेंगे आप ये वाला टोटल प्रेशर इट इज लेसर, तो बॉइलिंग पॉइंट होगा मैक्सिमम। सो ये जो सोल्यूशन है शोइंग नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन, इट ऑलवेज गिव्स यू मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सो व्हाट आर एजियोट्रॉप्स? एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं, लिक्विड मिक्सचर्स which boils without change in composition, which boils without change in composition। मतलब वो वाले लिक्विड मिक्सचर्स जो बॉयल करेंगे विदाउट चेंज कंपोजिशन। मतलब ये कि अगर आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने एक लिक्विड मिक्सचर रखा, लिक्विड मिक्सचर आपको हीट कर दिया, तो यू हैव वेपर्स। यहाँ पे वेपर जो है वो, अगर आप लिक्विड मिक्सचर्स ए और बी है, तो यहाँ पे भी ए और बी होने चाहिए इन वेपर फेज। तो वेपर फेज और लिक्विड फेज में जो आपका ये कंपोजिशन है वो सेम है। इसमें भी ए है, इसमें भी बी है, इसमें भी ए है, इसमें भी बी है, विद सेम क्वांटिटी। सो व्हाट इज दिस? इन अदर वर्ड्स वी कैन से ये डिस्टिल होते हैं, ये बॉयल होते हैं विदाउट चेंज ऑफ कंपोजिशन। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड एज एजियोट्रॉप्स। मतलब लिक्विड फेज में भी वही सब्सटेंस होने चाहिए, वेपर फेज में भी वही सब्सटेंस होने चाहिए। सो वी से द लिक्विड मिक्सचर बॉइल्स विदाउट चेंज ऑफ कंपोजिशन। सच एजियोट्रॉप्स आर कॉल्ड, such substances are called as एजियोट्रॉप्स। क्या होने चाहिए? These are called as एजियोट्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर है मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। सो इथेनॉल का 95%, 95.5% एंड वाटर का 4.5% अगर आप लेंगे इनका ये मिक्सचर, इट इज एन एजियोट्रॉप। इट्स एन एजियोट्रॉप एट हैविंग ए टेम्परेचर ऑफ 78.15 डिग्री सी। मतलब अगर कोई सोल्यूशन आपका पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, इफ अ सोल्यूशन शोज यू पॉजिटिव डेविएशन, ये वाला अगर आप देखेंगे पॉजिटिव डेविएशन, तो यहां पे प्रेशर मैक्सिमम है। जब प्रेशर मैक्सिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मिनिमम होगा। तो मतलब ये कि पॉजिटिव डेविएशन वाले जो होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं, वो अगर एजियोट्रॉप बनाएंगे, वो बनाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अगर आपका नेगेटिव डेविएशन वाला होगा, इफ यू हैव अ नेगेटिव डेविएशन लाइक दिस, तो इनका प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर इज लेस, मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मैक्सिमम होगा। मतलब नेगेटिव डेविएशन वाले जो सॉल्यूशंस होंगे नॉन आइडियल, दे विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आपको बनेंगे इन केस ऑफ नॉन आइडियल शोइंग नेगेटिव डेविएशन। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आपको बनेंगे फॉर नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स वो लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं जो डिस्टिल करेंगे और बॉयल होंगे विदाउट चेंज ऑफ कंपोजिशन। और मैंने एग्जांपल लिया था इन इथेनॉल और वाटर मिक्सचर का एट दिस कंपोजिशन। व्हेन यू टेक 95.5% इथेनॉल एंड 4.5% वाटर, तब आपका जो है लिक्विड स्टेट में भी आपके पास होंगे इथेनॉल एंड वाटर, वेपर स्टेट में भी आपके पास होगा वाटर और इथेनॉल। तो इन बोथ स्टेट्स, लिक्विड स्टेट एज वेल एज वेपर स्टेट, द कंपोजिशन इज सेम। ऐसा नहीं है कि सपोज इसमें अगर लिक्विड होगा, इसमें अगर आपका होगा ए और बी, अगर आपने हीट करा तो यहां पे बना आपका ए खाली, बी नीचे ही रह गया, तो कंपोजिशन इज नॉट सेम। उस वक्त एजियोट्रॉप नहीं बनेगा। ये एजियोट्रॉप तब बनेगा जब वेपर फेज में भी ए और बी आपका पाया जाए और लिक्विड फेज में भी आपका ए और बी पाया जाए विद सेम कंपोजिशन। वी कॉल इट एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप्स जो है इन केस ऑफ नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डेविएशन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। In case of negative deviation, it forms a maximum boiling azeotrope because pressure is lesser. In this case, pressure is higher. So I hope you understand it. This was the last lecture we talked about in solutions. If you find it difficult, you can move the video forward and backward, pause it to learn it carefully. If you like my videos, please do not hesitate to share and subscribe my channel. Thank you very much.